वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में द थीव्स स्टोरी के कुछ पैरास और पढ़े थे, तो उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन है, वेयर डू अनिल लिव? सेकेंड, व्हाट वाज टॉट टू हरी सिंह बाय अनिल? थर्ड, हाउ डिड हरी सिंह मेड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ rupee? Fourth, in which way did Anil earn his livelihood? Fifth, what type of men robbed easily and with whom does a robber faces difficulty? तो उम्मीद कर सकती हूँ मैं आप सभी से कि आप लोग जल्द से जल्द मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर करके दिखाएंगे। अब द थीफ स्टोरी की आगे की कुछ पैरास हम लोग पढ़ते हैं। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat upon the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scarce. अर्थात अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। यदि मैं पैसे लेता हूँ तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 बजे मतलब 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ सकता हूँ। कंबल से बाहर निकलकर मैं बिस्तर तक रेंगता हुआ आया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा साफ और चिंताहीन था, जबकि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे, यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर घावों के थे। नेक्स्ट पैरा, My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees and 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. Within bracket, I had never bought a ticket in my life, but dashed straight on the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I cannot explain, and I lost the chance to get away. अर्थात मेरे हाथ रुपए तलाशने के लिए गद्दे के नीचे गए। जब मुझे वे मिले, मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें निकाल लिया। अनिल ने नींद में एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट कर ली। मैं भौचक्का रह गया और मैं जल्दी से रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने ये नोट अपनी कमर पर पैजामे के धागे से बांध लिए। मैं धीरे चलने लगा और नोटों को गिना। 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे। मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के एक अमीर अरब व्यापारी की तरह रह सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, अपितु सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी और गाड़ी ने अभी तक गति नहीं पकड़ी थी और मैं कूदकर किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया। किस कारण से मैं बता नहीं सकता और मैंने भागने का मौका खो दिया था। Next paras. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust.
I found myself in the maiden and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. अर्थात जब गाड़ी जा चुकी थी, मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरा विश्वास था कि दोस्त मदद की अपेक्षा समस्या अधिक देते हैं, और मैं स्टेशन के पास किसी एक छोटे से होटल में रुककर किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। ऐसा व्यक्ति जिसमें मैं वास्तव में अच्छी तरह जानता था, वही था जिसे मैं लूट चुका था। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कार्यकाल में मैं कई लोगों के चेहरे पड़ चुका था जब उनका सामान खो चुका होता है। लालची व्यक्ति भय दिखाता है, अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता है, गरीब व्यक्ति स्वीकारोक्ति दिखाता है। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उससे चोरी का पता चलेगा, उदासी की एक झलक भर दिखाएगा। पैसे के खो देने पर नहीं, परंतु विश्वास के खोने पर। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी। नवंबर की शुरुआत थी और हल्की सी बूंदाबांदी में मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। जल्द ही तेज़ बारिश होने लगी। मेरी कमीज़ और पैजामा मेरी त्वचा से चिपक गया और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के थपेड़े मारने लगी। तो ये कहानी यहीं तक, आगे की कहानी दूसरी क्लास में। धन्यवाद।